Hello. So today we will continue with question number 17. Question number 17 we have, that is 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 2n plus 1 to 2n plus 3 is equal to n by 3 into 2n plus 3. This is our question. Right, the same thing we have to do. Step 1, step 2, step 3. Step 1, p of 1 we will find. So step 1 is there. Step 1, put n equal to 1. So 1 upon 2 plus 1, 2 plus 3, 5, here 3 and here 5. 5 3s are 15. And here 1 upon 3 into 2 plus 3. So here 5. 3 into 5. 1 by 15. Clear? This is step 1. Now step 2. Step 2. P of k. Let P of k be true for some positive integer k. So 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 2k plus 1, 2k plus 3, 2k by 3 into 2k plus 3. This is our step 2. Now step 3. In step 3 I will write till here as it is, and here wherever n is there I will put k plus 1 as we are doing in all the questions. So one step we will write directly, right? Because we have to write p of k plus 1. P of k plus 1 is coming after P of k only. So P of k value is what? K by 3 into 2k plus 3 plus wherever n is there you put k plus 1. So if we put k plus 1, so 2 into k plus 1 plus 1, 2 into k plus 1 plus 3. Clear? चलो तो here k by 3 into 2k plus 3 plus 1 by 2k plus 2 plus 1. So 2k plus 3. And here 2k plus 2 plus 3, that is 5. Okay, see here 2 into 1 2. 2 plus 1 is 3. So 2k plus 3. 2 into 1 2. 2 plus 3, that is 5. चलो तो 1 by 2k plus 3 common, k by 3 plus 1 upon 2k plus 5. Now we do cross multiplication. One by 2k plus 3 into 2k square plus 5k plus 3 by 3 into 2k plus 5. So I have multiplied k into 2k, 2k square, k into 5, that is 5k, and 3 into 1, that is 3. Now if we solve this, 3 2s are 6,
So we will get 2k plus 3 and k plus 1 only. So here 1 by 2k plus 3, and here we will get 2k plus 3 and k plus 1 by 3 into 2k plus 5. चलो तो 2k plus 3 2k plus 3 cancel with each other. What is remaining? K plus 1 by 3 into 2k plus 5. This we can write it as two common, k plus 1. 2 1s are 2. Into what we add? We get 5, 3. So therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true. At that you have to write the statement. Okay, so this was your question number 17. Chalo, so now we will solve question number 18. Question number 18. 1 plus 2 plus 3 plus n less than 1 by 8 into 2n plus 1 whole square. See here, अब तक के क्वेश्चन में क्या था कि इज इक्वल टू था, राइट. हियर साइन इज डिफरेंट, लेस देन है, लेस देन. तो लेस देन जब भी है, डोंट वरी, अवर स्टेप्स एंड एवरीथिंग इज सेम. चेंज कुछ भी नहीं है, ठीक है. हम सिर्फ चेंज इतना ही है कि इज इक्वल टू था तो यहाँ पे लेस देन है, बस. चलो तो स्टेप 1, put n equal to 1, 1 less than. Here put 2 plus 1 3, 3 square 9 by 8. So 9 divided by 8, it will be 1 point something, right? 1 point whatever it will be, but it is always greater, so it is true. Clear? देखो 2 into 1 2, यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 into 1 that is 2. 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है? 9 by 8 as it is. And here if we keep 1 only, here n is equal to 1, so 1 less than, yes, it is true. Therefore p of 1 is true. Now step 2. Step 2 we have p of k. P of k 1 plus 2 plus 3 till k less than 1 by 8 into 2k plus 1 whole square. Step 3. Step 3 is there. In step 3, till here I am writing as it is. But plus here n, wherever n is there you put k plus 1, so k plus 1. देखो अब हम जनरली क्या करते थे कि यहाँ पे इज इक्वल टू रखते थे, राइट, बिकॉज हियर इज इक्वल टू वाज देयर. लेकिन अब यहाँ पे साइन कौन सी है? लेस देन. सो डोंट वरी, कीप लेस देन, बस, और कुछ चेंज नहीं है, राइट. चलो अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ. सो अब हमें एक काम करते हैं, ठीक है. 1 by 8 जो है वो कॉमन ले लेते हैं. अगर 1 by 8 को कॉमन ले लिया, इन शॉर्ट मल्टीप्लाइड बाई 8, हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइड बाई. सी 1 by 8 I am taking common. Here nothing is there, so it will be as it is. Here अगर इसमें से मैंने 1 by 8 निकाल लिया तो मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, राइट.
सो 8 इंटू के प्लस 1। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको यही स्टेप मिलेगा। सी 1/8 इंटू दिस, सो 1/8 इंटू 8 1 ओनली, सो हियर लाइक दिस। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ठीक है, देखो इसमें से 1/8 निकल गया तो सिर्फ ये बचा, इसमें से 1/8 निकल गया तो ऊपर 8 बचा, बस सिंपल। चलो तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 4k² प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8, इसको एक्सपांड किया और इसे मल्टीप्लाई किया विथ 8 इंटू के 8k, 8 इंटू 1 8, 2k² होल स्क्वायर 4k² प्लस 2 2 4 4k, 4k इंटू 1 4k ओनली, प्लस 1 स्क्वायर 1 ओनली, 8 इंटू के 8k, 8 इंटू 1 8। चलो तो आफ्टर दिस एट के प्लस 4k, 8k प्लस 4k 12k, 1 प्लस 8 9। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कैन आई राइट हियर और 1/8 ठीक है। Here in question what is given? 1/8 2n plus 1 whole square, wherever n is there k plus 1। देखो मैंने क्या किया, 2 इंटू के, सो 2 इंटू के, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, राइट। चलो आफ्टर दिस यू कैन राइट देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू। चलो तो नाउ आंसर नंबर 19। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है that is different. Our question is prove that n into n plus 1 n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। अब multiple of 3 मतलब is equal to 6 भी हो सकता है, is equal to 9 12 कुछ भी हो सकता है, राइट। हमें इसे ये प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू क्या आएगा। बट ऐसे लिखने की जगह पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, थ्री मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नंबर p q r, मतलब अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है इन शॉर्ट। चलो तो उसे करते हैं, डोंट वरी, सी वी विल डू इट। कैसे? सी प्रोसीजर इज सेम। क्या करना है स्टेप 1 में? स्टेप 1, put n equal to 1, 1 into 1 plus 1, 1 plus 5, 1 into 1 plus 1 2, 5 plus 1 6, 12, 12 is a multiple of 3, yes, therefore p of 1 is true। अगर यहाँ पे 11 आता देन इट इज रॉन्ग, बिकॉज 12 जो है मतलब 11 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे 12 आया, 12 डिवाइड बाय 3 इज पॉसिबल, मतलब 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। ओके, स्टेप 2,
p of k. So k into k plus 1 k plus 5 इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू क्या करेंगे 3m, मतलब you can write 3a also, 3b, 3c like this way anything. 3 को कुछ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। चलो तो नाउ स्टेप 3, p of k plus 1. So wherever n is there you put k plus 1. See n, so k plus 1, n, so k plus 1 plus 1, so k plus 2. Here I have not written plus 6. Why? I will tell you. See, here instead of 1 plus 5 I will write over here ओके। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 5 से, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 5 प्लस, सो प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 1, सो k प्लस 1 k प्लस 2। चलो तो अब क्या करेंगे, हाँ हमें क्या चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 5 साथ में चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 5 साथ में चाहिए। तो k प्लस 2 को एक काम करते हैं कि k प्लस 2 को सेपरेट करता हूं मैं, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 प्लस ये एज इट इज। देखो क्या किया मैंने, कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं की मैंने सिर्फ k को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 k प्लस 5 से, और प्लस 2 है तो प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 k प्लस 5 से, और k प्लस 1 k प्लस 2 एज इट इज़, राइट। कुछ चेंज मतलब कुछ ऐसा नया नहीं किया है, सिर्फ मैंने यही स्टेप को ऐसे लिखा कि k को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से प्लस 2, तो प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 2 से, और वो k प्लस 1 k प्लस 2 एज इट इज़। अब ऐसा क्यों किया मैंने, वाई आई हैव डन, बिकॉज k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 वी विल राइट 3m, सो k इंटू के प्लस 1 के प्लस 5 वी विल राइट 3m, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा इसीलिए। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3m, ये एज इट इज, बस इसमें से k प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं मैं, राइट, k प्लस 1 कॉमन, सो 2 इंटू k प्लस 5 प्लस k प्लस 2, ब्रैकेट जो है वो ऐसे कर देता हूं, टू के तो 3m प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस k 3k प्लस 12, तो 3m प्लस यहाँ से 3 कॉमन,
तो अब अगर मैं इसे लिखूँ 3 कॉमन ले लूँ पूरा मैं, और अंदर क्या बचेगा m प्लस k प्लस 1 k प्लस 4। देखा हमारा आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो 3 इंटू फॉर एग्जाम्पल q, where q is equal to m plus k plus 1 into k plus 4। ओके तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली उतने टफ या वैसे तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना रहता है, राइट। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, राइट, आई विल क्लियर इट। हियर यू कैन राइट एनी नंबर, राइट, क्यू ए बी सी एनी नंबर, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, एम या के नहीं होना चाहिए, मतलब जो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इनमें से कोई भी, इसके अलावा कोई भी नंबर लिख सकते हो, पी या जेड या एम तो नहीं लिख सकते, एस टी वी एल कुछ भी लिख सकते हो, राइट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आंसर करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हाँ क्यू जो है तो क्यू की वैल्यू क्या है वो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है, मतलब इसे अगर डिवाइड करेंगे बाय 11 तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो चलो स्टेप 1, अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये नंबर जो भी आएगा वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 10 रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, 10 प्लस 1 11, और 11 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, यस, देयरफॉर p of 1 is true। स्टेप 2, p of k 10 raised to 2n minus 1 plus 1 divisible by 11, so 11m, you can write 11a 11b like this way, no problem, okay। चलो now step 3, p of k plus 1, so 10 raised to, wherever n is there you put k plus 1, तो 10 रेज टू 2k, 10 रेज टू 2k प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 सेपरेट है, हाँ। तो अब एक काम करते हैं, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर आई विल टेक कॉमन। व्हाई आई विल टेक कॉमन आई विल टेल यू। इसमें से अगर मैं 10 स्क्वायर कॉमन लूं तो 10 रेज टू 2k प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, राइट, और प्लस 1, तो 10 स्क्वायर 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1। अब एक काम करता हूं, 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। क्यों मैंने ऐसा लिखा प्लस 1 माइनस 1, देखो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 11m, तो 10 स्क्वायर 11m minus 1 minus 1, so 10 square, so 100 into 11m minus 10 square, so 100 minus 1, clear।
सॉरी +1 है, +1 है। चलो तो इसमें से 100 इंटू 11m -100 +1 -99, और इसमें से अगर 11 कॉमन लूँ मैं तो 100m -9, तो 11 I can write here R, where R is equal to 100m -9। ओके चलो, तो ये जो क्वेश्चन था उसमें से थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा, यहाँ पे +1 -1 क्यों लिया, दैट आई हैव टोल्ड यू एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है देन यू लेट मी नो। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।